ہم خبر آپ کو دیں لاہور نیوز کی خبر پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا ایکشن 11 کروڑ روپے جاری بجٹ چھپانے پر ڈاکٹر زاہد منیر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر زاہد منیر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کی جائے گی۔ ڈینگی ورکرز کے مظاہرے سے 2 ہفتے قبل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے اکاؤنٹ میں 11 کروڑ کی رقم آ چکی تھی۔ لاہور نیوز نے 29 ستمبر سے رقم منتقلی کے اکاؤنٹ کا ٹائٹل نشر کیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے لاہور نیوز کی خبر پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا ایکشن 11 کروڑ کا جاری بجٹ چھپانے پر ڈاکٹر زاہد منیر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر زاہد منیر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کی جائے گی۔ ڈینگی ورکرز کے مظاہرے سے 2 ہفتے قبل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے اکاؤنٹ میں 11 کروڑ کی رقم آ چکی تھی۔ لاہور نیوز نے 29 ستمبر سے رقم منتقلی کے اکاؤنٹ کا ٹائٹل نشر کیا تھا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ لاہور نیوز کی خبر پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے ایکشن لیا ہے۔ 11 کروڑ کا جاری بجٹ چھپانے پر ڈاکٹر زاہد منیر کو معطل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر زاہد منیر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کی جائے گی۔ ڈینگی ورکرز کے مظاہرے سے 2 ہفتے قبل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے اکاؤنٹ میں 11 کروڑ کی رقم آ چکی تھی۔ لاہور نیوز نے 29 ستمبر سے رقم منتقلی کے اکاؤنٹ کا ٹائٹل نشر کیا تھا۔ اور ابھی آپ کو بتانے کہ لاہور نیوز کی خبر پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے ایکشن لیا ہے۔ 11 کروڑ کے جاری بجٹ چھپانے پر ڈاکٹر زاہد منیر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر زاہد منیر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کی جائے گی۔ ڈینگی ورکرز کے مظاہرے سے 2 ہفتے قبل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے اکاؤنٹ میں 11 کروڑ کی رقم آ چکی تھی۔ لاہور نیوز نے 29 ستمبر سے رقم منتقلی اکاؤنٹ کا ٹائٹل نشر کیا تھا۔ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو اس خبر کے حوالے سے لاہور نیوز کی خبر پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا ایکشن 11 کروڑ کا جاری بجٹ چھپانے پر ڈاکٹر زاہد منیر کو معطل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر زاہد منیر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کی جائے گی۔ ڈینگی ورکرز کے مظاہرے سے 2 ہفتے قبل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے اکاؤنٹ میں 11 کروڑ کی رقم آ چکی تھی۔ لاہور نیوز نے 29 ستمبر سے رقم منتقلی کے اکاؤنٹ کا ٹائٹل شیئر کیا تھا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور نیوز کی خبر پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے یہ ایکشن لیا ہے۔ 11 کروڑ کا جاری بجٹ چھپانے پر ڈاکٹر زاہد منیر کو معطل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد حسین سے۔ جی سجاد، بتائیے گا۔ لاہور نیوز کی خبر پر جمال ناصر نے 11 کروڑ کا جاری بجٹ چھپانے کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر زاہد منیر کے خلاف جو ہے وہ پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈینگی ورکر کو کرونا ریڈ 3 کمپین کا الاؤنس نہ ملنے پر جو ہے وہ احتجاج کیا تھا۔ سجاد سے مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو بتانے کہ لاہور نیوز کی خبر پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے ایکشن لیا ہے۔ 11 کروڑ کا جاری بجٹ چھپانے پر ڈاکٹر زاہد منیر کو معطل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر زاہد منیر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کی جائے گی۔ ڈینگی ورکرز کے مظاہرے سے 2 ہفتے قبل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے اکاؤنٹ میں 11 کروڑ کی رقم آ چکی تھی۔ لاہور نیوز نے 29 ستمبر سے رقم منتقلی کے اکاؤنٹ کا ٹائٹل نشر کیا تھا۔ سجاد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سجاد، بتائیے لاہور نیوز کی خبر پر کیا ایکشن لیا گیا ہے ابھی تک؟ سجاد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور نیوز نے یہ خبر نشر کی تھی جس پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے ایکشن لیا ہے۔ 11 کروڑ کا جاری بجٹ چھپانے پر ڈاکٹر زاہد منیر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر زاہد منیر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کی جائے گی۔ زاہد، اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ واضح طور پر ایکشن لیا گیا ہے لاہور نیوز کی خبر پر۔ سجاد حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ان کا شکریہ۔ شہری کو یرغمال بنا کر 3 کروڑ لوٹنے کا معاملہ ہے۔ ایف آئی اے کے 4 انسپیکٹرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
मुकदमे में इंस्पेक्टर फ़खर अब्बास, इंस्पेक्टर वकास साइबर क्राइम, सब इंस्पेक्टर नबील गुजरावाला, मुसद्दिक FIA साइबर लाहौर नामजद हैं। FIA अफसरान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने शहरी माजिद को फर्जी दरख्वास्त के तहत यरगमाल बनाया है। यरगमाल बनाया था, अहवाल क्या है जानेंगे राहील अली से। राहील बताइए ये क्या वाक़या है? जी ऐसा ये है जो साइबर क्राइम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मुताबिक जो मुंसलिक सेक्टर में 4 इनको जो है वो मौके करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तकरीबन 4 रोज खबर जिसके रोज जो है वो दिन में ये खबर जो है वो बताई थी कि जिसमें ये बताया गया कि माजिद नामी शहरी से फर्जी शफात पर जो है वो यरगमाल बनाया गया। 30 करोड़ का जो है वो 3 करोड़ का जो है वो उसे वसूल करके उसे जो है वो छोड़ा गया। जिसका जब छाया सामने आई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो उसके बाद आला अफसरान ने जो है उसकी तहकीकात की जितनी बात साबित हुई कि इब्तदाई तहकीकात है कि सेक्टर फखर इसके अलावा जो ये साइबर क्राइम में तैनात हैं मुसद्दिक और इसके अलावा गुजरांवाला में जो नबील है और इंस्पेक्टर वकास है, ये लोगों ने फर्जी इत्तेफाक से जो है वो कार्रवाई करते हुए माजिद नामी शहरी को जो है वो यरगमाल बनाया। हासिलपुर से उसको 2 दिन लाहौर में घुमाते रहे और उसके बाद उसे 3 करोड़ मुदीना चाहकर जो है वो वसूल किए। इस पर जो है वो इब्तदाई तौर पर जो है वो इंस्पेक्टर फखर को जो है वो हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार है। उसका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी जो है वो हासिल किया गया, जबकि दीगर जो इंस्पेक्टर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे गए, जो है वो हमारे जा रहे हैं। डॉक्टर FIA लाहौर जोन का कहना ये है कि उनकी तहकीकात की जाएगी और जल्द इन तमाम जो अफसरान जो क्रिमिनल एक्ट में शामिल उनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो लाई जाएगी और उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। जी ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का इजलास, क्राइम और थानों की कारकर्दगी का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस की जुर्म सरजद होने पर मुकदमे का फौरी अंदराज यकीनी बनाने की हिदायत। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब बताइएगा इस बारे क्या डिटेल्स हैं? शाहजेब से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताने कि DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का ये इजलास हुआ है। क्राइम और थानों की कारकर्दगी का जायज़ा, DIG ऑपरेशंस की जुर्म सरजद होने पर मुकदमे का फौरी अंदराज यकीनी बनाने की हिदायत सामने आई हैं। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत ये इजलास था। क्राइम और थानों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। DIG ऑपरेशंस की जुर्म सरजद होने पर मुकदमे का फौरी अंदराज यकीनी बनाने की हिदायत भी सामने आ चुकी है। आपको बता रहे हैं कि इजलास में क्राइम और थानों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। खबर यह है कि पंजाब में आशूब चश्म की वबा में कमी ना आ सकी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में आशूब चश्म के 142, सूबे भर में 2081 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर प्राइमरी सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने शहरियों को आंखों की सफाई का ख्याल रखने, तेज़ धूप और गर्दो गुबार से आंखों को बचाने की हिदायत की है। आशूबे चश्म की वबा से जान छुड़ाना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। सूबे भर में 2081 नए मरीज सामने आ गए। सिर्फ बहालपुर में 355, फैसलाबाद में 142, डेरा गाजी खान में 130 नए मरीजों में आशूबे चश्म की तस्दीक हुई। सूबाई वज़ीर प्राइमरी सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स भी वाफर मिकदार में मुहैया कर दिए गए हैं। आशूबे चश्म खतरनाक नहीं और ना ही इससे बिनाई मुतासिर होने का खदशा है। आशूबे चश्म का मर्ज 8 से 10 रोज में ठीक हो जाता है। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि शहरी तेज धूप और गर्दो गुबार से अपनी आंखों को बचाएं। पंजाब में आशूब चश्म की वबा में कमी ना आ सकी 24 घंटों के दौरान। और ख़बर ये भी है कि आंखों के गैर मयारी इंजेक्शन बनाने के केस में मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ड्रग कोर्ट ने मुलजिम को 16 अक्टूबर को पेश करने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट ने गैर मयारी इंजेक्शन बनाने के केस पर समाअत की है। पुलिस ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया है और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की है। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम नसीम अब्बास का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत ने पीर को मुलजिम को दोबारा पेश करने की हिदायत की है। इससे पहले मुलजिम बिलाल और आसिम जुडिशल हो चुके हैं।
خبر یہ ہے کہ ڈینگی مچھر کے خطرناک وار جاری 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 106 پنجاب بھر میں 214 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ کمشنر لاہور کہتے ہیں مثبت لاروا برآمد ہونے پر ڈینگی سپرے کرایا جا رہا ہے۔ شہریوں کی مدد کے بغیر انسداد ڈینگی مہم 100% مکمل نہیں ہو سکتی۔ شہر لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی قابو میں نہ آ سکا۔ محض 24 گھنٹوں میں لاہور میں ڈینگی کے 106 پنجاب بھر میں 214 نئے مریض سامنے آ گئے۔ سیکرٹری محکمہ صحت پنجاب علی جان خان کے مطابق راولپنڈی میں 24 گھنٹوں کے دوران 51، ملتان میں 13، گجرانوالہ میں 19، فیصل آباد میں 4 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ قصور، اٹک، مظفر گڑھ، سرگودا اور حافظ آباد میں ڈینگی کے 2 نئے مریض سامنے آئے۔ سیکرٹری صحت نے شہریوں سے اپنے ماحول کو خشک رکھنے اور محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرنے کا مطالبہ کیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ لاہور میں مثبت لاروا ملنے پر ایک روز میں 1418 پوائنٹس پر ڈینگی سپرے کیا گیا۔ 54,470 انڈور چیکنگ کے نتیجے میں 1381 مثبت لاروا گھروں سے ملے۔ آؤٹ ڈور 9,673 ڈینگی سرویلنس کے نتیجے میں 37 جگہوں سے مثبت لاروا شناخت ہوئے۔ شہری ڈینگی مچھر اور لاروا کے حوالے سے اطلاعات دیں، فوری کارروائی کے لیے ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ شہریوں کی مدد کے بغیر انسداد ڈینگی مہم 100% مکمل نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ کی انسدادی ڈینگی کارروائیاں جاری۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈینگی سرویلنس ٹیموں کی مانیٹرنگ کی، اپنی نگرانی میں سپرے کروایا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی سی لاہور عافیہ حیدر کی ہدایت پر تمام اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں موجود رہے۔ ڈی ڈی ایچ او کو 4 گھنٹوں بعد دوبارہ دورہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ایک گھر سے ڈینگی لاروا برآمد، ایس سی سی ٹی نے گھر اور اطراف میں ڈینگی سپرے کروایا۔ ڈی سی لاہور عافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران 1417 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ ڈینگی ٹیمیں لاروا برآمد ہونے کی صورت میں سپرے یقینی بنائیں۔ خبر یہ ہے کہ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ ذہنی صحت ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ روزمرہ زندگی میں بہت سارے لوگوں کو ذہنی دباؤ کا سامنا رہتا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کو سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے، جبکہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی مناسبت سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں تقریب منعقد کی گئی۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں فیکلٹی، ارکان سمیت ریہیب سینٹر کے حوالے سے واضح طور پر مریضوں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے اس موقع پر آگاہی واک کی قیادت کی اور سٹالز کا دورہ بھی کیا گیا۔ پینٹنگ سٹال سجائے گئے تھے جن کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا، ذہنی صحت ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کو سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے۔ معاشرے میں ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کی بحالی کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا نظام ہمیں ایک دوسرے پر انحصار کرنے کا عادی بناتا ہے۔ پاکستان میں 7 لاکھ افراد کے لیے صرف ایک سائیکاٹرسٹ موجود ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ملک میں مینٹل ہیلتھ کے کئی مریض رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے۔ اساتذہ کے پرامن احتجاج کے دوران گرفتاری کا معاملہ، جوڈیشل مجسٹریٹ نے 10 اساتذہ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اساتذہ کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی۔ احوال ابوبکر طارق کی رپورٹ میں۔ گرفتار 10 اساتذہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد کے روبرو پیش کیا گیا۔ عدالت نے اساتذہ کے 10 روزہ ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے 10 اساتذہ کو بری اور ان کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر کے مطابق اساتذہ نے پولیس پر تشدد کیا، جبکہ کسی استاد کے خلاف تشدد کے شواہد نہیں ملے، لہٰذا عدالت 10 اساتذہ کو مقدمے سے ڈسچارج کرتی ہے۔ گزشتہ روز عدالت میں اساتذہ کے خلاف پولیس کیس کی سماعت کے موقع پر وکلا کی بڑی تعداد پیش ہوئی۔ پولیس نے اساتذہ کو پرامن احتجاج کے دوران گرفتار کیا تھا۔ خبر یہ ہے کہ سابق انسپکٹر عابد باکسر کے پولیس حراست سے فرار ہونے کا معاملہ، عابد باکسر کے خلاف دہشت گردی سمیت 11 سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لواحقین نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے عابد باکسر کو غائب کیا ہے۔
साबिक इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस आबिद बॉक्सर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आबिद बॉक्सर गुज़श्ता रोज पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। आबिद बॉक्सर के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 11 संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक पुलिस ने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। आबिद बॉक्सर और उसके मुसल्ला गनमैन मुजाहमत करते रहे। आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार किया गया तो मुलजिम ने कांस्टेबल से सरकारी राइफल छीन लिया और साथियों समेत मिलकर फायरिंग कर दी। आबिद बॉक्सर इस दौरान फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने आबिद बॉक्सर के साथियों हमीदुल्लाह और इस्माइल को हिरासत में ले लिया। आबिद बॉक्सर पर इल्जाम है कि वो इश्तिहारियों और बताखोरों को पनाह देता है। दूसरी जानिब साबिक इंस्पेक्टर के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि आबिद बॉक्सर पुलिस की हिरासत में है, हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। IG पंजाब कहते हैं कि पुलिस अफसरानों एहलकारों की बहबूद के लिए कोशां हैं। पुलिस शुहदा और दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के 1000 से ज़ायद बच्चों को मुलाजमत दे चुके हैं। मज़ीद नई असामियों पर जल्द भर्तियों का आगाज़ होगा। पुलिस एहलकारों के किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज़ भी कर दिया गया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सानेहा चन्योट 1990 के पुलिस शुहदा की याद में तकरीब 7 शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और खुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की तकरीब में खुसूसी शिरकत। डॉक्टर अमजद साकिब सानेहा चन्योट 1990 के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चन्योट तैनात थे। चन्योट सानेहे में शहीद होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के वर्सा मौलाना जमील फखरी और सानेहे के ऐनी शाहिदीन ने शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, डॉक्टर अमजद साकिब ने पुलिस शुहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डॉक्टर अमजद साकिब ने शुहदा पुलिस के अहले खाना को यादगारी शील्ड और तहाइफ दिए। डॉक्टर अमजद साकिब को भी शील्ड पेश की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एक और आसान इकदाम, अलील पुलिस एहलकारों के किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज हो गया। DIG वेलफेयर पंजाब गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले DIG वेलफेयर पंजाब गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले एहलकार समर अब्बास की अयादत की। IG पंजाब की जानिब से गुलदस्ता पेश किया गया। IG पंजाब की जानिब से पहली मरतबा पुलिस वॉलंटियर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के आखिरी रोज तलबा को CCPO ऑफिस का मुतालियाती दौरा करवाया गया। खबर यह है कि बुध को स्कूल, कॉलेज, मार्केट और दफातर खुलेंगे या नहीं। निगरान पंजाब हुकूमत हाल कोई फैसला न कर सकी। बुध को तमाम स्कूल, कॉलेज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। स्मॉग के तदारुक के लिए निगरान पंजाब हुकूमत का 2 माह तक हर बुध को लाहौर बंद करने का हतमी फैसला न हो सका। बुध को स्कूल, कॉलेज, मार्केट और दफातर खुले रहेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ताहाल बुध की छुट्टी के हवाले से किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, मगर फैसला काबीना इजलास में होगा, लिहाजा बुध को तमाम स्कूल, कॉलेज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इससे पहले स्मॉग के बढ़ते खदशात के पेश नजर लाहौर की जिला इंतजामिया ने हर बुध को वर्क फ्रॉम होम करने की तजवीज़ दी थी। इंतजामिया की इस तजवीज़ पर बाज़ ताजिर ग्रुप ने इत्तफाक किया, ताहम कुछ ताजरों की जानिब से तनकीद का सामना था। लाहौर की जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि स्मॉग के लिहाज से अक्टूबर और नवंबर अहम महीने हैं। जरूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही स्मॉग से बचा जा सकता है। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद का कहना है कि हमारे मंसूबों से लाइफ स्टॉक के शोबे में तरक्की आएगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और IT के शोबों में तवज्जो से मौशी तरक्की मुमकिन है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद ने हरबंसपुरा, बरकी और शाहदरा में कायम वेटरनरी मराकज के दौरे किए। लाइफ स्टॉक बैठक में खुसूसी शिरकत की। इब्राहिम मुराद को मोबाइल डिस्पेंसरी, सहूलत सेंटर्स और दीगर सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर ने सहूलियात के फुकदान का भी नोटिस लिया। इस मौके पर इब्राहिम मुराद ने कहा, वेटरनरी इंतजामिया और मवेशी पाल अफराद के माबैन बाहमी तालमेल की जरूरत है। हमारे मंसूबों से लाइफ स्टॉक के शोबे में तरक्की आएगी। लाइफ स्टॉक का सेक्टर प्रायोरिटी एरिया है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे फार्मर है, आम आदमी है, उसको सपोर्ट मिल रही है, जो सर्विस मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं। हम फार्मर से भी मिल रहे हैं, किसान बैठक भी कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी साथ हैं, पूरी टीम है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की। तो उम्मीद है कि इस विजिट से जो फील्ड परफॉर्मेंस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। निगरान सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक का मजीद कहना था कि लाइफ स्टॉक का शोबा कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं, निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून का ही तसलसल है। असातिज़ा पर तशद्दुद की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की तायीद की है।
पीपल्स पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा ने दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सरकारी स्कूलों की निजकारी के हवाले से असातिज़ा पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की। कतन निगरान हुकूमत के पास इख्तियार नहीं कि इतनी बड़ी तरमीम कर सकें। हमारा मुतालिबा है कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं। ख़वातीन के साथ मासूम तलबात के साथ जो उनका रवैया था जारहाना और ख़वातीन पर तशद्दुद जो है वो पुरज़ोर उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजम्मत करती है। अपने असातिज़ा बहन भाइयों के साथ खड़ी है। हम उनकी हर तहरीक का हरावल दस्ता होंगे। हसन मुर्तजा का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर अदालत से रुजू कर सकती है। नवाज शरीफ जब भी हुकूमत से निकलते हैं बाहर चले जाते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं जिससे एक मखसूस तबके को नवाजा जा रहा है। ये दुरुस्त नहीं, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। हमने इलेक्शन कमीशन से भी ये गुजारिश की है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अदालत का रास्ता भी इख्तियार करेंगे और हम हक़ रखते हैं कि हम अदालत में जाएं और वहाँ ये चीज़ें बताई जाएं कि यहाँ सरकारी जो अफसरान हैं वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उनके ज़ाती मुलाजिम हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर के 21 अक्टूबर के जलसे के लिए पार्किंग प्लान मुरतब कर लिया। 50,000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग साइट्स कहाँ दस्तियाब होंगी। तमाम साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर समेत पार्टी अहदेदारों को गाइडलाइन दे दी गई है। हसन रजा की रिपोर्ट। ग्रेटर इकबाल पार्क के 21 अक्टूबर के जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून ने पार्किंग प्लान मुरतब कर लिया। 50,000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग के लिए चारों अतराफ में 4 पार्किंग साइट दस्तियाब होंगी। तमाम साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर समेत पार्टी अहदेदारान को गाइडलाइन मिल गई। सीनियर रहनुमा और पार्टी की मरकजी क़यादत के लिए अलग पार्किंग एरिया मखसूस। जलसागाह में आने वाले काफिलों की रहनुमाई के लिए 30 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। ये कोऑर्डिनेटर्स काफिलों की मुख्तस इनकलेब के लिए रहनुमाई करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर का कहना है कि 21 अक्टूबर को पूरा शहर ही जलसागाह में तब्दील हो जाएगा। पार्टी कायद के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला खुसूसी परवाज की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। साबिक वज़ीर आज़म का तैयारा 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने कहा है कि हम अपने कायद का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी खसूसी परवास की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। फ्लाई दुबई की खसूसी परवास दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से रवाना होगी। उम्मीद पाकिस्तान त्यारा साबिक वज़ीर-ए-आज़म को लेकर यूएई के वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे उड़ान भरेगा। नवाज शरीफ का त्यारा 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेगा। चार्टर त्यारे की लैंडिंग और पार्किंग के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता कर लिया गया। खसूसी परवास में 152 अफराद सवार होंगे। खसूसी त्यारे में नवाज शरीफ के हमरा मुस्लिम नून के कारकुन और सहाफ़ी लाहौर पहुंचेंगे। सदर मुस्लिम नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में होंगे। लाखों अफराद अपने कायद का पुरतपाक इस्तेमाल करेंगे। 21 अक्टूबर का सूरज खुशहाली लेकर आएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी अवाम में होंगे और मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह उनका खिताब सुनेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद का नाम है और बेहतरी इंशाल्लाह आएगी। मलिक सैफुल मलूक खोखर का मजीद कहना था कि अगर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी होती है तो भी नून लीग कानून की पासदारी करेगी। हम तशद्दुद पसंद नहीं हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए हैं। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। नवाज शरीफ आ रहा है महंगाई से निजात, मौशरी बहाली का हल साथ ला रहा है। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से NA 134 की यूनियन काउंसिल्स के ओहदेदारों की मुलाकात। कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तेकबाल के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि महंगाई को एक ही शख्स ने खत्म किया, वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वजीर आजम था तो आवाम को आटा घी चीनी सब सस्ता मिलता था। नवाज शरीफ गया तो सस्ता आटा घी चीनी सब आवाम की पहुंच से निकल गया। आवाम जान चुके हैं नवाज शरीफ वजीर आजम होगा तो मुल्क चलेगा, उनका घर चलेगा। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को अमीर बनाना, आवाम की महंगाई से जान छुड़ाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। सियासी इस्तेहकाम के लिए आवाम नवाज शरीफ का साथ दें। गरीबों का साथी गरीबों की मदद करने वापस आ रहा है। साबिक रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल और साबिक अरकान सूबाई असम्बली मलिक असद खोकर, अख्तर बादशाह और मियाँ इमरान जावेद भी मुलाकात में शरीक हुए। इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने का मामला इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की अदालत में समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि 16 माह में महंगाई की शरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से बढ़ी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, वही इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए। लीगी रहनुमाओं की तरफ से इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने मुकदमे की समाअत की। अदालत ने मुलजिमान को मुकदमे की नकूल तकसीम कर दी। अदालती हुक्म पर मुलजिमान मियाँ जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब, MD PTV सुहेल खान और प्रोड्यूसर राशिद बेग ने पेश होकर हाजिरी लगाई। अदालत ने मुकदमे की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि -1-2 किसने करना है, ये फैसला अब अवाम करेंगे। नवाज शरीफ आ रहे हैं, वो आकर बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। देखिए, -1 होना या -2 होना ये किसी अदालत का काम नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की ताकत है। और पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट देगी वज़ीर आज़म वो बनेगा। और पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि उनके वोट का हकदार, जो उनको महंगाई से निजात दिलाए, जो उनको बेरोज़गारी से निजात दिलाए, जो उनको महंगे बिजली के बिलों से निजात दिलाए, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब है। मियाँ जावेद लतीफ़ का इस मौके पर कहना था कि दिसंबर 2021 में कह दिया था कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ही अवाम के दुखों का मदावा हैं। अवाम आखिरी उम्मीद समझकर नवाज शरीफ को देख रहे हैं। हमने तो दिसंबर 2021 को कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के दुखों का मदावा है। अदालत ने पुलिस की मुलजिमान को डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मुलजिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। को बताएं कि आमदन कम, अखराजात ज्यादा, आम शहरी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। सब्जियों, फलों, ब्रायलर और अंडों के दाम आवाम की कुव्वत खरीद में ना आ सके। खरीदार कहते हैं आमदन वही है, महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों के दाम से शहरी परेशान। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। निर्खनामों के बरक्स मार्केट में सब्जियां 20 से 100 रुपए तक महंगी फरोख्त हो रही हैं। पालक 60 रुपए के बजाय 80, शलजम 115 के बजाय 150 रुपए फी किलो बिकने लगे। मेथी 170 के बजाय 320, बंद गोभी 140 के बजाय 170 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। भिंडी 100 के बजाय 130 रुपए, गाजर 115 के बजाय 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। लहसुन और मटर 600 रुपए, जबकि अदरक 1600 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। ब्रायलर की खपत कम होने से दाम 8 रुपए कमी के साथ 490 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि अंडे 1 रुपए मजीद महंगे, कीमत 310 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। खरीदार कहते हैं कि अब तो आलू टमाटर खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। आमदन बढ़ नहीं रही, महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है। पहले सिर्फ 500 या 600 में हो रही थी, लेकिन अब तो तकरीबन 2000 रुपया लग गया। ये चीज़ें मेरा ख्याल है 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल 3 साल पहले जो है ना, ये 1000 रुपये में हम ले जाते थे। अब ये 1500-1600 में मैंने लिया, तकरीबन ये रफली में आइडिया बता रहा हूँ। पहले ये होता था कि हम 1 महीने का राशन इकट्ठा ले लेते थे, अब हम 1 हफ्ते के हिसाब से चाह रहे हैं। फलों में सेब काला कोल्हू 350 रुपए, केला दर्जा अव्वल 130 रुपए से 160 रुपए फी दर्जन और अनार बदाना 800 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि शादरा फ्लाईओवर को रवां माह ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से शादरा चौक पर ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। मोहसिन नकवी से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुलाकात की। उन्होंने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात को सराहा। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कल सुबह शादरा फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। सूबाई वज़रा आमिर मीर और अज़फ़र अली नासिर भी हमरा थे। कमिश्नर और DG LDM
मोहम्मद अली रंधावा ने बताया कि मेगा प्रोजेक्ट पर 91% काम मुकम्मल हो चुका है। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि शाहदरा फ्लाई ओवर को रवामा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से शाहदरा चौक पर ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुलाकात की। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए पहली बार 1 करोड़ रुपए का एंडोवमेंट फंड कायम किया गया है। सहाफ़ियों के दीगर मसाइल के हल के लिए भी कोशां हैं। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आपने अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। मोहसिन नकवी की सरबराही में PHA कारकर्दगी से मुतल्लिक़ इजलास में पार्क्स की बहाली, नर्सरी के क़याम और दीगर अमूर के बारे में तबादला ख्याल हुआ। लाहौर में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान को भारी जुर्मानों के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के प्लान पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का कार्रवाइयों की खुद निगरानी करेंगे। PTC इन्फोर्समेंट विंग ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी है। तुलबा, उनके ड्राइवर्स और घरेलू अफराद को महफूज गाड़ियों बारे आगाही भी दी जाएगी।